हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखो, टुडेज टॉपिक इज पार्सिंग टेबल एंड LL1 पार्सर। ठीक है, पहले दिन हम लोग डिस्कस किए थे फास्ट एंड फॉलो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्सिंग टेबल एंड LL1 पार्सर। पार्सिंग टेबल देखो, व्हाट इज पार्सिंग टेबल? पार्सिंग टेबल मतलब लेक्सिकल एनालिसिस के बाद में हम लोग क्या पढ़े थे? सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस में क्या होता है? पार्सिंग ट्री डिजाइन होता है। ठीक है, पार्सिंग ट्री एक लेक्सिकल एनालिसिस में जो टोकन हम लोगों को मिलता है, उस टोकन को पार्सिंग टेबल में हम लोग देखते हैं वो टोकन ग्रामेटिकली सही है या नहीं है। तो यही पार्सर का काम होता है। ठीक है, तो what is parser? The parser is that phase of the compiler which takes a token string as input and with the help of exiting grammar convert it into the corresponding immediate representation. The parser is also known as syntax analyzer. ठीक है, यस पार्सर क्या? हाँ बोलो। The parser is that phase of दुमका का स्टूडेंट है। The parser is that phase of the compiler which takes a token string as input and with the help of exiting grammar convert it into the corresponding intermediate representation. The parser is also known as syntax analyzer. Syntax analyzer मतलब लेक्सिकल एनालाइज के बाद जो स्टेप होता है कंपाइलर डिजाइन प्रोसेस में और फेज में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंटेक्स एनालाइजर एंड आल्सो कॉल्ड पार्सर ट्री। ठीक है, तो पार्सर ट्री का काम ही है लेक्सिकल एनालिसिस में जो टोकन एक प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग और जावा प्रोग्रामिंग से हम लोगों को जो टोकन मिलता है, उस टोकन को क्या करते हैं? पार्सिंग लेक्सिकल एनालिसिस में वो जाता है और उस टोकन को एक ग्रामेटिकली तरीके में वो डिजाइन करते हैं कि वो ग्रामेटिकली सही है या गलत है। अगर हम लोग देखो, एक कोई लैंग्वेज, कोई एक पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं और कोई एक लाइन हम लोग लिखते हैं, तो वो लाइन में हम लोग क्या चेक करते हैं कि ग्रामर ठीक है या नहीं है। अगर ग्रामर ठीक नहीं होगा, उस लाइन का सही मतलब नहीं मालूम होगा। तो सेम प्रोसेस होता है एक प्रोग्रामिंग में कि वो प्रोग्रामिंग में ग्रामर सही है या गलत है। अगर ग्रामर सही नहीं है तो वो अलग से रन होगा, अगर सही है तो ठीक है। तो पार्सर क्या है? पार्सर, टू टाइप्स ऑफ पार्सर इज देयर, एक टॉप डाउन पार्सर और एक बॉटम अप पार्सर। व्हाट इज टॉप डाउन पार्सर? The top-down parser is the parser that generates paths for the given input string with the help of grammar, producing by expanding the non-terminal. And also we called it start from the start from the start symbol and ends on the terminal. Its use leftmost derivation. Further, top-down parser is classified into two types: recursive descent parser and non-recursive descent parser. Non-recursive descent parser को हम लोग क्या कहते हैं? LL1 पार्सर। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में काम करता है। ठीक है, तो टॉप डाउन पार्सर क्या है? टॉप डाउन पार्सर इज द पार्सर दैट generates paths for the given input string with the help of grammar production by expanding the non-terminal. It starts from the start symbol and end on the terminals.
it uses leftmost derivation. Further, top-down parser is classified in two types. One is recursive descent and recursive descent parser, and another is non-recursive descent parser or LL1 parser. What is recursive descent parser and what is recursive descent parser? Recursive descent parser is also known as the brute force parser or the backtaking parser. Recursive descent parser को हम लोग बोलते हैं brute force parser and or the backtaking parser. It basically generates the parse tree by using brute force and backtaking. ठीक है, ये parse tree generate करती है brute force और backtaking से. And non-recursive descent parser क्या होता है? Non-recursive descent parser में होता है it also known as LL1 parser or predictive parser or without backtaking parser or dynamic parser. It also a parsing table to generate the parse tree instead of backtaking. ये backtaking करता है और brute force बोलते हैं recursive descent parser को, ये backtaking नहीं करते. ठीक है, फिर आता है बॉटम अप पार्सर में क्या क्या चीज है टॉप डाउन पार्सर में, बॉटम अप पार्सर में, फिर मैं डिस्कस करूंगा उस चीज को LL1 पार्सर जो मेन होगा. रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ब्रूट्स अब जो मैं पहले बोला वो चीज याद रखना कि इट इज ऑल्सो नोन ब्रूट फोर्स पार्सर. यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद दे सकता है व्हाट इज व्हिच पार्सर इज also called brute force parser or backtaking parser. तो recursive descent parser एक शॉर्ट क्वेश्चन ही ज्यादा होता है यहाँ पर. ठीक है, और जो LL1 पार्सर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्सिंग टेबल में. तो LL1 पार्सर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ब्रीफ तरीके से क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन यहाँ से होता है. ठीक है, एंड बॉटम अप पार्सर क्या है? व्हाट इज बॉटम अप पार्सर? बॉटम अप पार्सर इज द पार्सर दैट जनरेट्स द पार्स ट्री फॉर द गिवन इनपुट स्ट्रिंग with the help of grammar production by compressing the non-terminal. It starts from non-terminals and ends on the start symbol. It uses the reverse of the rightmost derivation. Further, bottom-up parser is classified into two types mainly, LR parser and operator precedence parser. ठीक है, एक है LR parser में क्लासिफाइड होता है और ये ऑपरेशन प्रोसीडेंस पार्सर में होता है. LR पार्सर का L0 होता है, LR1 होता है. L0 में LR0, SLR1 एंड LR में LALR, CLR. यहाँ पर देखो एक प्रोडक्शन रूल यूज करके हम लोग ये जो है इसका कैसे एक क्वेश्चन है. ठीक है, एक ग्रामेटिकली सही है या नहीं है, ये दो जो प्रोडक्शन है इस प्रोडक्शन रूल यहाँ पर है, ये प्रोडक्शन रूल यूज करके ये सही है या नहीं है ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ पर ए सपोज टू कैपिटल T प्लस एस T है एंड यहाँ पर क्या है T सपोज टू ID ए स्टार साइन कैपिटल T T फिर ID फिर S. यहाँ पर देखो एक ग्रामेटिकली ये सही है या नहीं है हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे. यहाँ पर देखो पहले क्या आ रहा है S को हम लोग कैसे, ये प्रोडक्शन रूल 1 है, प्रोडक्शन रूल 2, प्रोडक्शन रूल 3, प्रोडक्शन रूल 4 और प्रोडक्शन रूल 5. ठीक है, तो S को हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं T प्लस S, इस तरीके से हम लोग डिवाइडेड कर लेंगे. फिर यहाँ पर T जो है T में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोडक्शन रूल 3 यूज करेंगे. देखो T में प्रोडक्शन रूल अगर 3 यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ID आ जाएगा, एक स्टार साइन आ जाएगा
और एक क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो एस है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्शन रूल 2। प्रोडक्शन रूल 2 एस मतलब हम लोग टी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग टी लिख दिए। और यहाँ पर हम लोग क्या किया, फिर देखो यहाँ पर जो टी है, इस टी को हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्रोडक्शन रूल 4। यहाँ पर देखो प्रोडक्शन रूल 4 में क्या है, टी इज इक्वल टू आई डी हो सकता है, तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू आई डी हम लोग लिख दिए, और यहाँ पर भी टी इज इक्वल टू आई डी हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, अगर इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो आईडी पहले आएगा, फिर टी, फिर आईडी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, फिर यहाँ पर आईडी आ जाएगा। देखो ये प्रोडक्शन रूल यूज करके ये जो ग्रामर है ये यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, देखो। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ से कैसे ले आएंगे, तो वही यहाँ पर ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर का फंडा है। तो यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो एस का पहला क्या है, टी प्लस एस, एस का हम लोग पहले लिख दिया, एस का क्या किया, टी प्लस एस। फिर यहाँ पर एस का प्रोडक्शन रूल यूज करके टी हम लोग लिख दिए। फिर यहाँ पर टी का थर्ड प्रोडक्शन रूल हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। थर्ड प्रोडक्शन रूल यूज करने के बाद में क्या आ जाएगा, आईडी स्टार और टी। इस टी को हम लोग प्रोडक्शन रूल 4 यूज करेंगे, फिर टी आईडी हो रहा है, और यहाँ पर भी टी आईडी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सीक्वेंस में हम लोग सजाएंगे, तो क्या आ जाएगा, आईडी स्टार आईडी, फिर प्लस, फिर यहाँ पर आईडी आ जाएगा। तो ये ग्रामेटिकली सही है। ठीक है, फिर देखो बॉटम अप पार्सर में हम लोग क्या बोले, बॉटम अप पार्सर क्या है, bottom up parser is the parser that generate the parse tree for the given input string with the help of grammar production by compressing the non-terminal. It starts from non-terminal and ends on the start symbol. It uses the reverse of the rightmost derivation. Further, bottom-up parser is classified two types, LR and operation precedence parser. LR parser क्या है? LR parser is the bottom-up parser that generates the parse tree for the given string by using ambiguous grammar. यहाँ पर ambiguous grammar use होता है। ambiguous grammar क्या है वो मैं बाद में बोलूंगा। It follows the reverse of the rightmost derivation. यहाँ पर LL1 पर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे काम होता है, और LR पार्सर में क्या होता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन में काम होता है। ठीक है, LR पार्सर इज ऑल्सो 4 टाइप। यहाँ 4 टाइप क्या होता है, LR0, SLR1, LALR एंड CLR। ये 4 टाइप्स हम लोग बोलते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं LR0, LR1 2 टाइप्स हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, और LR0 को बोल सकते हैं LR0, SLR1, LALR, CLR। हम लोग जब पार्स ट्री में डिजाइन करेंगे, तो जब ए लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो मोस्ट पावरफुल इसका ग्रामर होगा। ठीक है, जो यहाँ पर थोड़ा इजी होगा, यहाँ पर जो ग्रामर है वो उससे ज्यादा टफ होगा, तो मोस्ट पावरफुल क्या होगा, CLR होगा। ये याद रख, मोस्ट पावरफुल क्या होगा, CLR होगा। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर क्या है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर generates the parse tree from given grammar and string, but the only condition is two consecutive non-terminal, and epsilon never appears on the right hand side of any production. ये याद रखना, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में क्या होता है, generates the parse tree from given grammar and string,
but the only condition is two consecutive non-terminal and epsilon never appears on the right hand side of any production. ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर एक ड्राइंग दिखाता हूं। देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दो ग्रामर है, ये LL1 ग्रामर के अंदर आता है या नहीं आता है। ठीक है, इट इज LL1 ग्रामर और नॉट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी फाउंड द ग्रामर इज LL1 और नॉट। ठीक है, पहले देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो एक ग्रामर है एस स्टार्ट और एस डिराइव, एल ब्रैकेट में है, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस, एल कैपिटल एल एक क्लोज ब्रैकेट क्लोज फर्स्ट ब्रैकेट और ए। एल क्या है, एल डिराइव कैपिटल एस, एल डॉट क्या है, एप्सिलॉन है और कॉमा कैपिटल एस एल डॉट है। ठीक है, यहां पर देखो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये LL1 पार्सर है या नहीं है, इसको मालूम करने के लिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, फास्ट निकालेंगे। इन तीनों ग्रामर का जो फास्ट है वो फास्ट हम लोग निकालेंगे। तो ये तीनों ग्रामर का फास्ट क्या है तुम लोग निकालो, फिर बोलो क्या है। मैं क्वेश्चन करूंगा, ये तीनों ग्रामर है इसका फास्ट क्या है तुम लोग निकालो। बोलो इसका फास्ट क्या होगा। अपेक्षा open parenthesis and Sir, ओपन yes, sir. पैरेंथेसिस एंड a. And रेहान A. बोलो। Hello. हाँ बोलो रेहान, एस का कैपिटल एस का फास्ट क्या होगा इसका। सर एस का जो है वो ओपन पैरेंथेसिस और ये होगा, क्योंकि एस का फर्स्ट में है ओपन पैरेंथेसिस और सेकंड में ए है। ठीक है, एल का क्या होगा बोलो। एल का भी सर Sir, ओपन open पैरेंथेसिस और ये होगा। parenthesis and A. अच्छा सोनिया बोलो, एल का ओपन पैरेंथेसिस एंड ए क्यों आ रहा है। सोनिया बोलो। सोनिया तो था, कहाँ चला गया। सोनिया ना सोहम, कौन बोल रहा था। ठीक है, बोलो एल का क्या होगा। आकाश अमन। अमन कुमार। चांदनी। कोई तो नहीं है यहाँ पर। तानिया कुमारी। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. बोलो ए सेकंड जो Sir. कैपिटल हाँ उसका फास्ट क्या होगा बोलो। Sir, open bracket और A. क्यों आ रहा है एल का फास्ट। सर L का फर्स्ट टर्मिनल कैपिटल S है और कैपिटल S का फर्स्ट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस और स्मॉल a है सर, इसीलिए। ठीक है, फिर बोलो एल डॉट डैश का क्या होगा। सर एप्सिलॉन और कॉमा। क्यों हो रहा है। सर क्योंकि उसका फर्स्ट का फर्स्ट टर्मिनल एप्सिलॉन है और सेकंड कॉमा है। ठीक है, फिर अपेक्षा बोलो। अपेक्षा तुम बोलो। Yes, sir. हम लोग तो यहाँ पर फास्ट निकलनी है, लेकिन फास्ट के बाद हम लोगों को फॉलो निकलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी फाइंड द फॉलो ऑफ एस। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब LL1 पार्सर को हम लोग डिफाइन करेंगे और व्हेन वी
find out the LL1 parser in this grammar. First, we find out the first of LL1 parser. Next, we find out the follow of LL1, follow of all grammar in LL1 parser. ठीक है? तो first of जो फर्स्ट ग्रामर है एस का फॉलो किया है. हम लोग तो फास्ट निकाल लिए, फास्ट है ओपन पैरेंथेसिस कॉमा ए, लेकिन एस का फॉलो क्या है इसमें, तो बोलो फॉलो क्या है. सर डॉलर एंड कोमा. डॉलर एंड कॉमा एस का फॉलो है. सर ओपन पैरेंथेसिस होगा. फिर सोच के बोलो क्या है. सर डॉलर और क्लोज पैरेंथेसिस. डॉलर कोमा एंड क्लोज ब्रैकेट्स. देखो फॉलो हम लोग क्या निकलते हैं, एस का फॉलो. यहाँ पर एस का फॉलो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो एस है. हम लोग फॉलो में क्या करते हैं, राइट साइड में हम लोग फॉलो नहीं निकलते हैं. क्या कहाँ निकलते हैं, लेफ्ट साइड से. हम सर सिर्फ क्लोज पैरेंथेसिस होगा. नो सर, डॉलर कॉमा क्लोज पैरेंथेसिस. एस का डैश का क्या होगा, देखो एफ साइलेम है. बोलो क्या क्या आएगा. किसका सर? बोलो ए एस का. ठीक है, एस का फॉलो क्या होगा, बोलो. सर एस का फॉलो डॉलर कॉमा और क्लोज पैरेंथेसिस. हाँ कैसे आ रहा है, बोलो. सर क्योंकि एस जो स्टार्ट होता है हमेशा डॉलर से होता है. हाँ डॉलर एक आ गया. तो- फिर हाँ, एक डॉलर आ गया और हम लोग दूसरा कॉमा लिए. एस एल जो है एस का जो वैल्यू था एस था और एल डैश था, तो एल डैश का वैल्यू हम लोग निकाले थे यहाँ पे. कॉमा था एक, और एक कॉमा था और दूसरा है यहाँ पे है एल डैश का. ये एल डैश जब रिटर्न होगा तो एल होगा, तो एल का जो राइट हैंड साइड है वो क्लोज पैरेंथेसिस है. तो इसलिए हम लोग क्लोज पैरेंथेसिस का भी यूज किए. हाँ ठीक है. तो एस का क्या फॉलो किया आ जाएगा, डॉलर कॉमा क्लोज पैरेंथेसिस. आप बोलो आदित्य कुमार पांडे, बोलो. आदित्य कुमार Yes, sir. पांडे, यस आप सर. बोलो तुम एल का कैपिटल एल का फॉलो क्या होगा, बोलो. सर कैपिटल एल का सिर्फ क्लोज पैरेंथेसिस हो जाएगा. हाँ क्यों हो जाएगा, बोलो. सर क्योंकि हम लोग जो एस देख रहे हैं, एस का सिंस कि हम लोग के पास फॉलो जो है वो डॉलर कॉमा और क्लोज पैरेंथेसिस है. तो सर हम लोग जब एल में आएंगे तो देख रहे हैं कि उसका मेरा फर्स्ट टर्म एस है और एस का मेरा लास्ट टर्म वो है डॉलर कॉमा और क्लोज पैरेंथेसिस. हाँ हम लेकिन लोग यहाँ सर- से भी बोल सकते हैं. एल का देखो, एल का हम लोग अगर फॉलो निकालेंगे तो एल का इमीडिएट राइट में क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस है. तो इमीडिएट राइट में जो होगा वो तो हो जाएगा फॉलो में, तो इसलिए सिर्फ क्लोज पैरेंथेसिस है. एल डैश का क्या होगा, बोलो. उज्जवल सिन्हा, बोलो एल डैश का फॉलो क्या होगा. ये दोनों का हम लोग निकाल लिए, एल डैश का फॉलो क्या होगा. अनामिका बोलो, अनामिका टॉपो. देखो एल डैश का भी फॉलो क्या आ जाएगा, क्लोज पैरेंथेसिस. क्योंकि एल डैश का फॉलो अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एल का आ जाएगा, एल का फर्स्ट. ठीक है, तो एल का फर्स्ट क्या आ जाएगा, देखो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, क्लोज पैरेंथेसिस. अब देखो यहाँ पर हम लोग का पास जो 3 ग्रामर है उसका फास्ट एंड फॉलो हम लोग निकल लिए. तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक ग्रामर जो है ये LL1 के अंदर है या नहीं है, ये हम लोग अब निकालेंगे. ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, पार्स टेबल. हाँ पार्स टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे. तो पार्स टेबल में क्या होगा, देखो ऊपर हम लोग जो लिखेंगे वो टर्मिनल होगा एंड
इस साइड में हम लोग जो लिखेंगे वो वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टर्मिनल हम लोग के पास क्या क्या था, ओपन ब्रैकेट्स क्लोज ब्रैकेट था, ये क्या है स्मॉल ए है, ये भी एक टर्मिनल था और कॉमा था, ये चार था, ठीक है। ये चार जो टर्मिनल ऑपरेटर है वो टर्मिनल में टर्मिनल के अंदर आता है। तो ये चार हम लोग यहाँ पर पहले लिख देंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा एक आएगा वो डॉलर आएगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पर डॉलर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा डॉलर, और यहाँ पर क्या आएगा, एस वेरिएबल क्या क्या है, एस है, एल है और एल डैश है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस एल और एल डैश, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे क्यों, क्योंकि किसके अंदर में कौन आ रहा है, तो इसलिए ये ड्राइंग ऐसा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन रूल 1, ये प्रोडक्शन रूल 2, ये प्रोडक्शन रूल 3, ये प्रोडक्शन रूल 4 और ये प्रोडक्शन रूल 5 है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, प्रोडक्शन रूल 1 हम लोग चेक करेंगे। तो प्रोडक्शन रूल 1 में क्या आ रहा है, एल ए आ रहा है। तो इसमें क्या है, राइट हैंड साइड का हम लोग क्या निकालेंगे, फास्ट निकालेंगे। देखो ये जो है इसका राइट हैंड साइड का फास्ट हम लोग निकालेंगे। तो इसका राइट हैंड साइड का फास्ट क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ठीक है। ओपन ब्रैकेट देखो ये तो ये लाइन तो एस हो रहा है, इससे हम लोगों को पता चल रहा है, लेकिन ये तीनों में कौन सा बैठेगा और कहाँ बैठेगा वो हम लोग को मालूम करना है। तो एस में है, तो एस में ये तीनों के कौन सा बैठेगा, ये जो ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड का फास्ट क्या है, ये ओपन ब्रैकेट है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन रूल 1 कहाँ पर बैठ गए, यहीं पर बैठ गया, ठीक है। ये ओपन 1 यहाँ पर हो गया। फिर हम लोग के पास क्या है, ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए प्रोडक्शन रूल 2 के अंदर आता है और ये एस के अंदर बैठेगा। तो एस के अंदर ए कहां पर बैठ जाएगा, ये 2 यहाँ पर बैठ जाएगा। तो प्रोडक्शन रूल किसमें है, यहाँ पर है। प्रोडक्शन रूल 2 क्या कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। फिर प्रोडक्शन रूल 3, तो प्रोडक्शन रूल 3 देखो क्या होगा, एस आ जाएगा। इसका राइट हैंड साइड में फर्स्ट क्या है, कैपिटल एस है, लेकिन यहाँ पर एस तो हम नहीं लिख सकेगा, क्योंकि एस देखो यहाँ पर है लेकिन ऊपर में एस नहीं है। कि ऊपर में एस नहीं है इसके मतलब एस का फास्ट अलग से निकालेंगे। एस का फास्ट क्या है, ए है और ये है, कॉमा और ए है स्मॉल ए। तो कॉमा में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन रूल 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी प्रोडक्शन रूल 3 आ जाएगा, ए पे भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दो प्लेस में प्रोडक्शन रूल 3 आ जाएगा, कॉमा पर आ जाएगा और ए पे आ जाएगा। फिर क्या आ रहा है, एल डैश। एल डैश क्या है, यहाँ पर देखो प्रोडक्शन रूल 4 एप्सिलॉन है, ठीक है। तो देखो अगर एप्सिलॉन होगा तो एप्सिलॉन हम लोग तो नहीं लिख पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन के प्लेस में सर हम लोग फॉलो क्या का यूज लिखेंगे, करेंगे। फॉलो का यूज करेंगे। सर फॉलो का जो वैल्यू आया था, हाँ, Close parenthesis. इसका फॉलो का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, क्लोज पैरेंथेसिस सर। क्लोज पैरेंथेसिस आ रहा है। तो यहाँ पर क्लोज पैरेंथेसिस के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, 4 हम लोग लिख देंगे। तो ये 4 जो प्रोडक्शन रूल है, इस प्रोडक्शन रूल 4 कहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा और एल तो यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी फाइंड आउट द प्रोडक्शन रूल 5। प्रोडक्शन रूल 5 में हम लोगों के पास क्या है, एस एल डैश। तो एस का क्या है, कॉमा, सॉरी कॉमा है, कॉमा कैपिटल एस और एल डैश। तो इसका फास्ट क्या आ जाएगा, राइट हैंड फास्ट साइड में इसका फास्ट क्या निकलेंगे, कॉमा निकलेंगे। तो कॉमा कहाँ बैठेगा, देखो एल डैश पे तो बैठेगा और कॉमा यहाँ पर है। तो 5 जो है प्रोडक्शन रूल वो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक था लेकिन 2 बैठे, क्यों, क्योंकि एस का हम लोग फास्ट निकालेंगे, एस का फास्ट है कॉमा और ए, इसलिए यहाँ पर 3 2 प्लेस में यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक चीज याद रखना, क्या, अगर
कोई भी चीज यहाँ पर एक ही प्लेस में अगर 2 बार बैठ गए, समझो यहाँ पर 3 और 4 दो एक साथ हो रहा है, तो यहाँ पर LL1 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3, देखो हर एक घर में क्या है, एक ही नंबर है, तो इसलिए ये LL1 पार्सर के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, और एक ग्रामर है, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका फर्स्ट क्या निकाले, क्या होगा बोलो, एस का, ये तुम सर, लोग करो, S मैं बोल रहा हूँ तुम लोग करो, फिर मैं इसका आंसर बोलूंगा। ठीक है, एस का फर्स्ट पहले निकालो। AB एप्सिलॉन। AB एप्सिलॉन, A ठीक B है, एप्सिलॉन। एंड फॉलो क्या आ जाएगा, सर BA डॉलर। डॉलर AB। डॉलर BA और BA जो भी हो सकता है, BA डॉलर। ठीक है, तो एक ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर में हम लोग क्या क्या बिठाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, टर्मिनल सर क्या ऊपर है, होगा टर्मिनल सर AB डॉलर। AB डॉलर आ जाएगा, और नीच में क्या आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल क्या है हम लोग के सर, पास, सिर्फ एस है। वेरिएबल S है। SS। हाँ, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रोडक्शन रूल हम लोग यहाँ पर बैठेंगे तो क्या करेंगे बोलो, यहाँ पर देखो प्रोडक्शन रूल कितना है, 1 2 3, 3 है सर। ठीक है, एक है, ये 2 है, ये 3 है, तो पहले एक का प्रोडक्शन रूल कहाँ बैठेगा बोलो, सर S का A में होगा। ए में एक हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हाँ, one। इसका फर्स्ट क्या है, स्मॉल ए है, तो यहाँ पर Yes। 1 बैठ जाएगा, और प्रोडक्शन रूल Yes, 2 sir। कहाँ पर होगा, 2 सर B में। बी में आ जाएगा, एंड प्रोडक्शन रूल 2 3 कहाँ पर आएगा बोलो, एप्सिलॉन सर के, 3 जो है, सर 3 जो है वो एप्सिलॉन है, तो वो S का वैल्यू में, मतलब S में रिटर्न होगा, तो S में जो भी वैल्यू है वो सारा में बैठेगा, मतलब A B और डॉलर तीनों में होगा सर। हाँ, प्रोडक्शन तो रूल क्या 3 जो आ है। जाएगा, देखो एप्सिलॉन तो रिटर्न हो जाएगा, एप्सिलॉन रिटर्न हो गया कि फर्स्ट ऑफ एस आएगा, फर्स्ट ऑफ एस हम लोग पहले से ही क्या है, ए बी एप्सिलॉन है, तो 3 प्रोडक्शन रूल 3 कहाँ कहाँ पर, एक में भी बैठेगा, 2 पे भी बैठेगा, और तीनों पे भी बैठेगा, लेकिन एक में पहले से ही ए है और बी है, तो यहाँ पर क्या Yes, दिख रहा है कि एक ही सर बॉक्स 1/, वो 2 यूज हो रहा है। ठीक है, Yes। तो क्योंकि एक ही बॉक्स 2 बार यूज हो रहा है, इसलिए ये LL1 के अंडर में नहीं आएगा, ये ग्रामर Yes, sir, LL1 not में होगा। grammar। ठीक है, समझ में आया, लेकिन Yes, यहाँ sir। पर क्या होगा, यहाँ पर देखो एक बॉक्स में कोई भी दोबारा नहीं आ रहा है, तो इसलिए एक ग्रामर है LL1 ग्रामर, और एक ग्रामर है LL1 ग्रामर तो नहीं है, ये क्या है वो मैं बाद में जब डिस्कस करूंगा कि दोनों बॉक्स में अगर आएगा तो, हाँ बोलो सर इसमें इससे पहले वाले ग्रामर में फॉलो ऑफ एस एक बार और बता दीजिए ना फॉलो ऑफ सर। एस, इसमें क्लोज पैरेंथेसिस आएगा सर? इसमें यस सर। इसमें क्लोज यस सर, न्यू पैरेंथेसिस ग्रामर क्यों में। आएगा बोलो, फॉलो ऑफ एस बोल रहे हैं, फॉलो ऑफ एस देखो, फॉलो ऑफ एस यहाँ पर क्या है, हम लोग अगर फॉलो ऑफ एस निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे बोलो, पहले तो एस का स्टार्ट सिंबल क्या है, डॉलर है, यस सर, और फर्स्ट ऑफ इसका एल्डस हो जाएगा। फॉलो क्या है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एस का एल डैश आ जाएगा, एल डैश का क्या होगा, एल डैश का देखो यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ एल डैश आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ अगर एल डैश हम लोग फर्स्ट फॉलो ऑफ एल, सॉरी एप्सिलॉन अगर होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, फॉलो ऑफ एल डैश, तो फॉलो ऑफ एल डैश क्या होगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑफ एल आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ एल यहाँ पर देखो एक क्या है, यहाँ पर तो कॉमा आ जाएगा, एक कॉमा तो हो गया, और क्लोज ब्रैकेट क्यू आ रहा है, देखो क्लोज ब्रैकेट क्यू आ रहा है, देखो इस एल का फॉलो क्या है, इमीडिएट राइट में क्या है, क्लोज ब्रैकेट है,
तो एल डैश जब आएगा इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एल का फॉलो निकालेंगे ना। देखो मैं पहले स्टार्ट से बोल रहा हूं, देख लो। एस का हम लोग क्या निकालेंगे, फॉलो निकालेंगे। तो एस का फॉलो हम लोग पहले क्या आ जाएगा, एस का स्टार्ट सिंबल डॉलर है इसलिए डॉलर आ गया। फिर देखो एस का राइट साइड में हम मेरे पास क्या है, एल डैश है। तो एल डैश का हम लोग अगर फास्ट निकालेंगे तो एक तो कॉमा आ गया और क्या आया, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फॉलो ऑफ एल डैश निकालेंगे। तो फॉलो ऑफ एल डैश यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल डैश का फॉलो अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो फिर एल आ रहा है, एल का फॉलो हम लोग निकालेंगे। तो एल का फॉलो यहाँ पर क्या है, देखो उसका राइट हैंड साइड में क्या है, Yes, sir. क्लोज पैरेंथेसिस है। तो इसलिए Yes, sir, समझ यहाँ आ पर गया। अगर हम लोग एल का फॉलो निकालेंगे तो क्लोज पैरेंथेसिस आ रहा है, तो क्योंकि एल का राइट साइड में क्लोज पैरेंथेसिस है, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्लोज पैरेंथेसिस आ रहा है, क्योंकि एल का फॉलो क्लोज पैरेंथेसिस क्या है, ये क्लोज पैरेंथेसिस है एल का फॉलो। एल का हम लोग फॉलो क्या बोलते हैं, इमीडिएट राइट में जो भी होगा, तो इमीडिएट राइट में क्लोज पैरेंथेसिस है इसलिए क्लोज पैरेंथेसिस आ रहा है, ठीक है। तो ए जो है ए नोट कर लेना और घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं बोलूंगा। और LL1 पार्सर कैसे हम लोग निकालते हैं, और कोई भी पार्स जो ग्रामर है वो LL1 के अंडर है या नहीं है, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर जो आ रहा था तो एक क्या आ रहा था, एक ही बॉक्स में दो चीज आ रहा था, तो इसलिए LL1 नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर LL1 हो जाएगा। तो यही प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाद में जो है मैंने पहले ही बोला, ये तो सिर्फ LL1 का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग LL1 का और एक या दो एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। फिर LR आ जाएगा, LR0, SLR, जो मेन टॉपिक से मैं वही बोलूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो चीज तुम लोगों को मालूम होना चाहिए जो एग्जाम पर आता है वही मैं डिस्कस करूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं और डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। और एग्जाम में मैं जितना भी पढ़ाया हूं उससे ही क्वेश्चन करूंगा, वो देख लेना। जो तुम लोग जब करते हो तो यूट्यूब पे भी है, और अगर बुक पे नोट डाउन करते हो तो वहां वहीं से भी चेक कर लेना, ठीक है। चलो, प्रेजेंट तुम लोग दे दियो वो चैट बॉक्स में। यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो।